अब वक्त हो गया है हमारे ओपनिंग पैनल का, जिसका टॉपिक है बिल्डिंग कम्युनिटी रेजिस्टेंस टू क्लाइमेट चेंज। और ये टॉपिक हमारे जो आज इस साल फेस्टिवल के का थीम है रल मिल, उससे बहुत ही इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स। और हमने जो ये पैनल क्यूरेट किया है इस टॉपिक के लिए, वो इसलिए किया है क्योंकि जो इस साल क्लाइमेट चेंज का रिस्पॉन्स है, that has mainly and predominantly been led by women. And so we felt it was very important, because they are at the forefront of the response to climate change. It was very important to gather a range of voices, a range of different views from different walks of life to come and talk to us about this issue that affects all of us. So without further ado, I will pass it on to our moderator, Mahreen Sahiba. Assalamu alaikum. I'm Mahreen Khan, and it's wonderful to be able to moderate this session. We have an amazing panel with us, और मुझे पता है कि शेर गिल के बाद हमारा काफ़ी मुश्किल टास्क है आप लोगों को इंगेज करना। हम गा भी सकते हैं बीच में, लेकिन उनकी तरह नहीं। अच्छा, तो जैसे कि हमारी MC ने कहा, ये जो पैनल सेशन है, it's about climate change and building resilience within communities, जो कि उर्दू का तर्जुमा बड़ा मुश्किल है इसका करना, लेकिन मैंने थोड़ा गूगल किया तो इसका बनता है कि माहौलियाती तब्दीली के लिए लचक पैदा करना तो that's the उर्दू of it। अब हम ये करेंगे कि थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा सा उर्दू चलता जाएगा, और मैं चाहूँगी कि आप गौर से सुने, इसलिए कि हमारे जो पैनलिस्ट्स हैं, एक आई हैं हमारी लाहौर से, एक ट्राइबल एरिया से, एक हैदराबाद से और एक कराची से। तो we're truly representative of the country, and it's wonderful for me to be able to introduce on my right Miss Quratulain Wazir, और ये ADC नौशेरा से ही असिस्टेंट कमिश्नर हैं, और शायद आप लोगों ने देखा होगा इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी व्हाट्सएप पे सैलाब से पहले। इन्होंने ख़ुद जा के घर घर लोगों को, ख़ास तौर से मर्दों को वो किया था परसुएड कि आप घर छोड़ें, इसलिए कि पानी आने वाला है। और इन्होंने वाकई एक बहुत ही अच्छी मिसाल कायम कर दी है आने वाले दिनों के लिए। मेरे ख्याल से तालियां होनी चाहिए मिस वज़ीर के लिए। She is a truly inspirational woman leader in her own right. Then next to her, it's Ayesha Amin. Ayesha is wearing a lovely yellow sari today. And ये representative हैं अपनी NGO की, जिनका नाम है बैठक. And Ayesha's organization deals with gender justice, especially promoting reproductive and sexual health issues, which of course is extremely important, and her work focuses in Sindh. Round of applause for Ayesha. Let's welcome her, please. Then on my left in red, we have traffic lights represented, red, yellow and green today. Dr. Fazilda Nabeel. She is the provincial coordinator of the Living Indus Initiative, which is a very important job. It's a brand new portfolio, जो कि UN ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके ये इनिशिएटिव किया है शुरू, जिसमें 20 से 25 इंटरवेंशंस होंगे, जिसका मकसद ये होगा कि जो इंडस रिवर है हमारा, जो लाइफलाइन है पाकिस्तान की, उसकी इकोलॉजिकल जो बेहतरी है वो की जाए। So a round of applause for Fazilda, who's come all the way from Lahore. And to my left in the second seat is Hira Wajahat, local, yes, from Karachi. Your peeps are here, Hira. From Stimulus, she's the project and program manager for sustainable and clean technologies and innovation in this space, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और वो हमको बताएंगी कि जैसे ख़वातीन जो हैं वो ना सिर्फ अपनी कम्युनिटीज़ को लीड कर रही हैं, लेकिन इनोवेशन में भी हैं और नई नई तरह की जिद्दत पैदा कर रही हैं इस फील्ड में, जहाँ पे आगे जाके
हमारी clean technologies होंगी which will allow us to have a green economy and become a really a force to be reckoned with. आपको पता है पाकिस्तान में IT कितना ज़्यादा उरूज पे है. So nice round of applause for Hira as well, and let's get started. So the first thing I want to ask is, with a show of hands, आप लोग हाथ उठाइए. Have any of you, आपके रिश्तेदार या जानने वाले, had been directly impacted by the floods in Sindh? Anyone? One? Anyone at the back in the chairs? Any? अच्छा, किसी ने काम किया था सैलाब ज़दगान के लिए, कोई relief work किसी तरह का? Very good. ठीक है. So it's good to see that some people will have a lot more knowledge. So let me start off first of all. Miss Wazir, आपको काफ़ी लोग यहाँ जानते हैं पर्सनली तो नहीं, लेकिन आपकी वीडियो देखी थी. आप ज़रा ये बताइए, वो एक इतना ज़्यादा मकबूल हुआ था वो वीडियो कि एक ख़ातून होते हुए, असिस्टेंट कमिश्नर होते हुए आप घर घर गई और आपने मर्दों को बताया, और वो भी पठान मर्द ट्राइबल एरियाज़ में, कि भाई आप लोग निकलिए अपने घरों से, ये सेफ़ नहीं है, सैलाब का पानी आने वाला है. ज़रा बताइए कि वो क्या मंज़र था और आपके क्या फीलिंग्स थी, इमोशंस थी जब आप ये काम कर रही थी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ. आई एम कुरतुलैन वज़ीर. आप शायद मुझे मिस वज़ीर के नाम से जानते हो. आई एम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा, और अभी भी मैं नौशहरा में ही तैनात हूँ. मैडम ने जो क्वेश्चन किया उस हवाले से तो मैं यही कहूँगी कि मेट डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट और PDMA से हम इन कॉन्टेक्ट थे, और हमें 1 मंथ प्रायर ही बता दिया गया था कि मूनसून इस बार काफ़ी जो है नौशहरा को मूनसून या फ्लड्स जो हैं हिट करेंगे. तो आप लोगों ने अपनी तैयारी जो है वो फुल जो है आपने करनी है. तो ऐसा नहीं था कि फ्लड्स आए और हमें इंफॉर्मेशन मिली और हमने फिर जो है उस पर अपना रिस्पॉन्स दिया. 1 मंथ पहले ही हमने अपनी तैयारी पकड़ी थी. हमारे जितने लाइन डिपार्टमेंट्स थे, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, CNW है, TMAs हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स, ऑलरेडी हम कॉन्टेक्ट में थे. कंट्रोल रूम हमारे इस्टेब्लिश हो चुके थे, और एक ही मैसेज जाना था गाँव में कि आप लोगों ने जो है फ्लड्स हिट कर रहे हैं नौशहरा को, तो आप लोगों ने जो है यहाँ से निकलना है. मैम, आपने जो क्वेश्चन किया वो हमारी ये सिचुएशन थी कि हमारे काबुल रिवर के साइड पे जो है प्रोटेक्शन वॉल है, एम्बैकमेंट्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, लेकिन हमारा जो फ्लड नौशहरा को हिट कर रहा था वो था हमारा 3,75,000 क्यूसेक, और हमारे काबुल रिवर की जो कैपेसिटी है वो 1,25,000 क्यूसेक है. तो इतने हाई लेवल का फ्लड जब इफ़ेक्ट कर रहा था, ज़ाहिर है ओवरफ्लो ही होना है वाटर ने. तो ओवरफ्लो के लिए हमारे पास बस एक ही चांस था कि हमने एवैक्यूएशंस की तरफ जाना है. जितने हम ज़्यादा एवैक्यूएशंस करेंगे, हमारे पब्लिक या हमारे जो जितने भी वहाँ पे शहरी थे या आवाम थे, वो उतना ही हम उसको सेव कर सकें. तो डिप्टी कमिश्नर साहब को मैंने 3:30 बजे रात को कॉल की कि सर, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हाई अलर्ट जारी कर दिया, इन दिस इज़ द लास्ट अलर्ट, कि बस इसके बाद हमने फील्ड में जाके एवैक्यूएशंस करनी है. तो वो एक सिचुएशन था, और हमें बार बार रिपोर्ट्स भी आ रही थी फील्ड से, चूँकि फील्ड में हमने मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के हमारे मेल जो हैं ऑफिसर्स हैं उन्हीं को इंगेज किया था. लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब की कॉल आई कि मैडम जो है 32 मौज़े हमारे ऐसे हैं जो बहुत हाईली इफेक्टेड हैं, तो वहाँ से लोग नहीं निकल रहे, आप खुद जाके इनको एवैक्यूएट करें. ज़ाहिर है मेरे लिए एक चैलेंजिंग भी था. और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यूजुअली जो होते हैं वो ऑफिस मैनेजमेंट का करते हैं, फील्ड में हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स जाते हैं जो PPS 17 के होते हैं. तो वो जब डिप्टी कमिश्नर साहब ने ऑर्डर किया, मेरे पास 2 ही घंटे थे, और उसमें 700-800 फैमिलीज़ आप एवैक्यूएट करें, साथ में उनके कैटल को भी मूव करें. इट वाज़ वेरी हार्ड टास्क फॉर मी, लेकिन निकलना था. जब मैं निकली हूँ तो मुझे सिचुएशन का पता चल गया है कि लोग घरों से निकल ही नहीं रहे. बिल्कुल नॉन सीरियस एटीट्यूड था. ज़ाहिर है उनकी अटैचमेंट से अपनी प्रॉपर्टी, अपने एसेट्स के साथ तो इतना आसानी से नहीं था. लेकिन फिर उसके बाद मुझे, जो कि मेरे डोमेन में नहीं था, लेकिन मुझे बोलना पड़ा. अब मुझे नहीं पता कि वो उनको अच्छा लगा बुरा लगा, लेकिन मुझे सख्ती करनी पड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास 2 घंटे के बाद जो है नौशहरा के बहुत सारे जो हैं हमारे मौज़े जो हैं वो डूब जाएंगे, सब मर्ज हो जाएंगे, और वैसा ही हुआ. तो उस वक्त जो है मैंने उनको बताया भी कि आप निकलें, नहीं निकलेंगे तो फिर मैं पुलिस के साथ ज़बरदस्ती आके आपको घरों से निकालूंगी. तो दिस वाज जस्ट अ मैसेज. बिल्कुल, तालियां ज़रूर बजाएं. ये जिस इलाके की बात कर रही हैं वहाँ पे ये काम करना, वो भी एक ख़ातून के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है.
और यही मैसेज था कि लोगों ने इसको सीरियस लिया, क्योंकि वहाँ पे फीमेल जो होती हैं वो तो अपने मर्द पे जो है डिपेंडेंट होती हैं। वो मेरी बात कैसे सुन सकती हैं? उनके आपके मशर से, उनके घर के मेंबर से, उनके एल्डर से आपने पूछना होगा कि आप निकलें। जब तक मशर को आप जो है उसके एल्डर को एग्री नहीं करते, कोई वहाँ से नहीं हिलता। तो उनको इससे सख्ती से मैंने इसलिए उनको बोला है कि देखिए इसके बाद मैं आऊँगी, और मैंने आना भी था पुलिस के साथ, मैं उनको वहाँ पे फिर भी ना छोड़ती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मेरा ये मैसेज गया लोगों तक, हम गए हैं डोर टू डोर, हमने लोगों को उठाया है और उनके कैटल्स को मूव किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने निकलना शुरू कर दिया। और वही वजह है कि पोस्ट फ्लड में उन्होंने देख लिया कि वही जितने भी हमारे इलाके थे वो सब मर्ज हो गए थे फ्लड्स में, और अल्हम्दुलिल्लाह नौशहरा के जितने भी लोग थे वो सेफली मूव हो गए थे हमारे रिलीफ जोन में। बहुत बड़ी बात है, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई आपके इलाके में? जी मैम, हमारे सिर्फ 475 घर हमारे डैमेज हुए थे फुली। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कोई कैजुअल्टी, कोई जो है डेथ केस रिपोर्ट नहीं हुआ, बल्कि कैटल भी हमने मूव कर दिए थे, जो कि हमने रोड की साइड पे उनको कुछ एरिया दे दिया था, वहाँ पे हमने बांध लिए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई भी जो है कैजुअल्टी रिपोर्ट नहीं हुई। एक्सलेंट, एक्सलेंट, थैंक यू। अच्छा, यही सवाल मैं आपसे करूँगी हिरा। हिरा, आपने कैसे देखा कि जो फ्लड्स और सैलाब आए थे 2010 में भी, फिर लास्ट ईयर भी, उसके दौरान आपने क्या डिफरेंस महसूस किया इन द रोल ऑफ वुमेन एंड हाउ दे लेड कम्युनिटीज़, और हाउ यू फाउंड दैट वुमेन वर मोर रिस्पॉन्सिव टू द फ्लड्स दैट हैपेंड लास्ट ईयर? थैंक यू मेरीन फॉर द क्वेश्चन। मुझे ये लगता है कि 2010 में जब पहली दफ़ा फ्लड्स आए थे, शायद हमारी अवेयरनेस, हमारी नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट इस दफ़ा काफ़ी चेंज एक जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, नॉट जस्ट फ्लड्स के अंदर बट ओवरऑल लास्ट 4-5 साल से मेरा काम क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज़, क्लाइमेट वेंचर्स के साथ चल रहा है, और जो मेरे प्रोग्राम्स हैं उसमें मोर देन 50% विमेन पार्टिसिपेंट्स who are working on technologies related to agriculture, aerospace, energy, मुख्तलिफ़ किस्म की वो सारी टेक्नोलॉजीज़ जो कि मिटिगेशन, अडेप्टेशन, रेजिलियंस की तरफ काम करती हैं। सो ये वो ख़वातीन हैं जो ड्यूरिंग प्री फ्लड्स, पोस्ट फ्लड्स, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द कंडीशंस आर, ये दे कंटिन्यू टू वर्क ऑन देयर प्रोडक्ट्स ताकि दे आर मेड मोर एक्सेसिबल टू द पीपल हु नीड दैम। बहुत बेसिक प्रोडक्ट्स भी हैं, जिस तरह के आपकी सोलर लाइट्स या वो एनर्जी सिस्टम्स होते हैं, वाटर सिस्टम्स होते हैं, बट थिंग्स दैट फ्लड अफेक्टेड पीपल नीड मोस्ट, रिहेबिलिटेशन की तरफ जब जाने लगते हैं तो हमें उनको इमीडिएट चीज़ें जो टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करनी है टू हेल्प देम कम आउट ऑफ देयर चैलेंजेस। बट व्हाट आई सी एज अ मेजर डिफरेंस दिस ईयर इज़ दैट a lot more women are aware, a lot more women are taking action, a lot more women are on the field during the immediate आप कह लें कि जिस वक्त सैलाब आया हुआ है उस वक्त भी, बाद में भी, रिहेबिलिटेशन की तरफ भी, so much more engagement. Thank you. Ayesha, your organization deals with a subject which is usually taboo in Pakistan. People don't, even in the home or in public, talk about women's reproductive health, particularly menstruation issues. जब एक सैलाब आता है, एक क्राइसिस आती है, तो लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं जाता कि जो ख़वातीन इससे गुज़र रही होंगी उनके लिए क्या सहूलत फ़राहम कर सकते हैं. In fact, it's even when I was preparing for this seminar, I thought, wow, that's something I hadn't thought of. कि एक तो आप पानी में हैं, आपका घर चला गया, आपके कपड़े चले गए, आपके पास खाने को नहीं है, and then you have your period, and like on top of everything. And can you imagine what you do in the middle of this village and how you cope with that? So Ayesha, tell us how your organization have been helping women in that situation. So as you mentioned कि कभी भी crisis जब आता है, सैलाब हो या कोई भी crisis हो, तो immediate thought होती है कि लोगों को shelter देना है या उनको खाना पहुंचाना है, right? जो स्टिग्मेटाइज टॉपिक्स होते हैं जैसे मेंस्ट्रुअल हेल्थ हो गया या और भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इश्यूज़ हैं, दे डोंट गेट अटेंशन, क्योंकि हम नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में भी, एज यू सेड, वी डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट दोज इश्यूज़. बट दैट डजंट मीन कि ख़वातीन को पीरियड्स नहीं आते. सैलाब में पीरियड्स तो जब आने होते हैं, इनफैक्ट आई थिंक अ लॉट ऑफ गर्ल्स वुड रिलेट कि जब हमें होता है कि नहीं आए उसी दिन वो पीरियड्स आ जाते हैं, यू नो. So they don't stop for a climate crisis or any sort of crisis.
और हमारा जो काम है, क्योंकि हम पिछले 4 साल से इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो हमारी इमीडिएट थॉट ही ये जाती है कि लड़कियां और ख़वातीन क्या कर रही हैं. सो इवन इन पेंडेमिक आवर थॉट वाज कि लॉकडाउन में ख़वातीन कैसे एक्सेस कर रही हैं जब उनको मोबिलिटी नहीं है, हाउ आर दे एक्सेसिंग पैड्स. और सैलाब में भी हमारी फ़र्स्ट थॉट यही थी, क्योंकि जिन कम्युनिटीज़ के साथ हम काम कर रहे थे वो भी डिस्प्लेस हुई थी, तो वहाँ से हमें पहले नीड आना स्टार्ट हुई कि दे नीड पैड्स, बिकॉज हम वहाँ पे ऑलरेडी वो नॉर्मलाइज कर चुके थे, वो एक उनकी कि दे वर मोर ओपन टू आस्किंग फॉर इट. इस तरह हमारा एक इनिशियल रिस्पॉन्स स्टार्ट हुआ. सो अ लॉट ऑफ आवर वर्क फर्स्ट वॉज प्रोवाइडिंग इमीडिएटली कि उनको कुछ भी पैड्स की ज़रूरत है तो पैड्स दें, अंडरवेयर्स की ज़रूरत है तो अंडरवेयर्स दें, अगर उनको क्लॉथ पैड की ज़रूरत है तो वो दें. लेकिन व्हाट वी ऑल्सो डिड वाज have conversations with young girls and women, because they were already going through a lot of trauma, especially जो young लड़कियाँ थी जिनको first time, I remember एक लड़की से मैं मिली थी, she was 13 or 14 year old, she was very young, और उसको उसी फ्लड कैंप में उसको अपनी फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए थे. और हमारे पास वैसे भी क्योंकि बात नहीं की जाती, एक टैबू टॉपिक है, तो लड़कियों के लिए जब उनको पहली दफ़ा पीरियड्स आते हैं वो itself is a very challenging time. Girls don't know what's going on in their body. There is a certain shame attached to that bleeding. And then उसको कपल करें आप वो जो bodily changes होते हैं, और फिर being displaced from your home, not having access to washrooms, right? Losing your siblings. We met young girls who had lost their siblings in those floods. Imagine that with the experience of having your period for the first time. So this 13-14-year-old girl, I remember, she came to me and told me that she is feeling disgusted, because she had, उनके पास कपड़े भी लेने का काफ़ी ख़वातीन और लड़कियों के पास टाइम नहीं था. वो एक जिस जोड़े में थी या एक जोड़ा उठा के वो आई थी, तो उनके पास साफ़ कपड़ा भी नहीं था, अंडरवेयर्स नहीं थे, पैड्स नहीं थे. And all of this is ignored. Normal circumstances में भी, लेकिन normal circumstances may be, लेकिन especially in climate crisis. So these were the circumstances we were dealing with, I mean the women were dealing with. I do also want to share that usually क्योंकि हम सोचते नहीं हैं तो हमें नहीं पता होता, but when we started having conversations with women, I was shocked despite having worked in this field for so long, कि ख़वातीन जो खड्डा, जो पानी के, बारिश का पानी जो जमा हुआ था ना, उसमें वो कपड़ा धो रही थी और वो यूज़ कर रही थी. इमेजिन द हेल्थ issues that these women were going through. So a lot of our work was understanding what the needs were and providing them what they needed. Well, that's fantastic that you thought about that and that your organization is addressing an issue which so often gets overlooked for women. Because इसमें challenge ये है कि climate change की जो space है, उसमें जो decision makers हैं, policy makers हैं, वो ख़वातीन नहीं होती उमूमी तौर पे. लेकिन it's good news that people like Dr. Fazilda are now leading policy discussions so that the female viewpoint can be brought in. जहाँ पे decisions लिए जाएंगे अब, वो gender blind नहीं होंगे, वो gender defective नहीं होंगे, उसमें ख़वातीन का perspective आएगा. So Fazilda, tell us about the Indus initiative. This is obviously at the government level and it has quite a few interventions, but what does it mean to ordinary people? What should the audience know about it? Thank you, Mahreen. Thank you for that question. So the Living Indus plan is, or the Living Indus initiative is a mega initiative. और इसके अंदर 25 sub interventions हैं और each sub intervention is in itself a master plan. For instance, as Minister Sherry Rahman was talking in her address yesterday, she referred to the plan. It has things that citizens of the Indus, us citizens of the Indus would love. It has, it advocates for the establishment of 10 zero plastic waste cities along the Indus. The Indus is the second most plastic polluted river in the world. दुनिया का दूसरा प्लास्टिक polluted river है Indus.
and imagine, you know, if we establish that kind of circularity in our plastics use, reducing, reusing, and establishing that circularity, what it would mean for us as citizens. It has things like कि river के अपने rights हैं, river के ecosystem के rights हैं, हमारी mangroves के rights हैं, you know, and the setting is just perfect because we're sitting right next to the mangroves here. So giving the river and its ecosystems rights of legal personhood. It advocates for an Indus Protection Act कि आप जो Indus River है, क्योंकि उसने हमारी इकोलॉजी को, हमारी इकोनॉमी को, हमारी पॉपुलेशन को पिछले 5000 से ज़्यादा सालों से वो सपोर्ट करता आ रहा है. You know, if you look at all of life in this region, it has been supported by the Indus River. Agriculture in Pakistan, industry in Pakistan, Pakistan's economy, Pakistan's population, everything depends on the Indus. And this Indus it's now undergoing massive degradation, not just because of climate warming, but also because of pollution, because of biodiversity loss. So the initiative is, what is different about this initiative is it's not advocating the construction of, for instance, dams. It's not advocating that you make, you know, you spend so many $1 billion on grey infrastructure. It's advocating that you go back to nature. So you go back to nature and natural ways of conservation in order to save nature. You go towards nature-based solutions, ecosystem-based adaptation initiatives. आप community storage ponds बनाएं, आप communities को involve करें, eco-tourism की तरफ आएं, you know, led by communities, led by women, so that it leads to progress. It's an extremely forward-looking initiative crafted by, you know, and crafted and drafted by the best minds in the climate space. And I really hope it was passed by the federal cabinet last September. They took it to COP. I really hope that, you know, it translates well from being a plan to, you know, being a plan of action and actually, you know, being implemented on ground. तो इसकी timeline क्या है implementation की? So the timeline ranges depending on कि आप कौन सी intervention को देख रहे हैं. The timeline ranges between 5 to 15 years. कुछ interventions 5 साल में हम achieve करना चाहते हैं. For instance, जो Indus Protection Act है, Indus को एक rights of the river देना, rights of nature देना. कुछ interventions को ज़्यादा time लगेगा. You know, their timeline is greater. So some are 10 years, some are 15 years. लेकिन ये एक पाकिस्तान जो कि एक बहुत climate vulnerable मुल्क है. We are among the top 10 as we know. और जो पिछले साल के floods से, they were just a snapshot. हमारी floods की, you know, we also need to understand that last year's monsoons were a very direct result of climate change. You know, जिस तरह हम कहते हैं ना वो monsoon on steroids. क्योंकि पिछले so since 1961, Pakistan has not had, you know, an August that was this wet. So last year was the wettest August since 1961. कुछ research ये भी show करती है कि सिंध और बलूचिस्तान के अंदर जो rains आई, they were 75% more intense than they would have been if the climate had not warmed up by 1.2 degrees Celsius. So a lot of data suggests that the monsoons were you know, not an erratic one-off event. They were a direct result of climate warming, and it was a very slight snapshot of what could happen in the future. That's an interesting point, because there is a direct link between the change in global warming and these extreme events, right? Now that's statistical. तो अगर हम पीछे की तरफ सोचें तो 2010 में जो सैलाब आया था और 2022 में जो आया तो उसमें काफ़ी फ़र्क था. आपसे मैं कुरतलैन पूछना चाहूँगी कि आपका एक्सपीरियंस 2010 में क्या था आपके उस नौशेरा के इलाके में?
मैम आई वुड लाइक टू ऐड कि 2010 में तो मैं सर्विसेज में नहीं आई थी. आई एम फ्रॉम मैंने जो ज्वाइन किया मैंने 2012 में. जी बिल्कुल मैम. फ्लड्स जब हमारे नौशहरा को हिट करे थे, ऑफ कोर्स मैंने वीडियोस देखी थी, लेकिन उस वक्त हमारा ये था कि हमारी प्रोटेक्शन वॉल्स नहीं थी. हमारी जो काबुल रिवर है उस वक्त प्रोटेक्शन वॉल्स हमारी नहीं थी, और तबाही इसी वजह से हुई थी जिसने हमारे डेथ हुए थे, और जो हमारा क्रॉप का जो है डैमेज हुआ था, जो हमारी बिल्डिंग्स जो हैं कंस्ट्रक्टेड एरिया या कमर्शियल एरिया जो हमारा डैमेज हुआ था, वो इसी वजह से हमारी प्रोटेक्शन वॉल्स नहीं थी, हमारी एम्बैकमेंट नहीं थी. लेकिन जब 2010 का सैलाब आया तो लोगों को पता चल गया कि मतलब हमने अभी क्या इस तरह की जो है कोशिशें करनी है जिसकी वजह से कोई भी सैलाब आए तो हमारी इतनी तबाही ना हो. जिसके लिए फिर हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट के थ्रू प्रोटेक्शन वॉल और एम्बैकमेंट जो है वो कंस्ट्रक्ट किए, जिसकी वजह से जो है हमारा सैलाब काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया. तो अभी जो हमारी सिचुएशन है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमारी प्रोटेक्शन वॉल की कैपेसिटी ही 1,75,000 क्यूसिक है, और आपका जो ये रेला आपसे गुजरता है ये जो है वो आपका 3,75,000 क्यूसिक है. तो दैट्स ह्यूज जो है हमारा डिफरेंट है, जिसकी वजह से हमारी प्रोटेक्शन वॉल से ओवरफ्लो होता है पानी का हमारे इलाकों की तरफ. तो इस यानी एक तरफ तो नौशेरा इज़ अ वेरी गुड केस स्टडी to show that when you take the right policy initiatives, you can prevent the disaster or you can mitigate the disaster to an extent. So when they built the early warning system and the protection walls on the River Kabul, that led directly to the much better results that we saw in 2022. मेरा सवाल आपसे ये है कि 2010 के बाद जो भी उन्होंने मंसूबे बनाए, इम्प्लीमेंटेशन की, उससे एक वाज़े फ़र्क नज़र आया 2022 में. मैम लाइक मैंने अगर इवैक्यूएशंस की या मेरी टीम ने इवैक्यूएशंस की तो पूरे नौशहरा का तो पॉसिबल नहीं था. ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन वॉल की वजह से मेरा नौशहरा बच गया था. जी लेकिन मैम इससे मैं आप बात आगे बढ़ाते हुए ये पूछूंगी कि अब 2022 के कौन से वो लेसन्स हैं जो हमें सीखने हैं ताकि आइंदा कोई ऐसा हो हादसा जो कि अनफॉर्चुनेटली होगा तो हम और ज़्यादा प्रिपेयर्ड हों उसके लिए. व्हाट आर द लेसन्स लर्नड? मैम देखिए, मैं तो खुद फील्ड में रहती हूँ, फील्ड ऑफिसर हूँ. मुझे पता है कि मतलब आपको कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं जब फ्लड्स में हमने जो ड्यूटी की, इमरजेंसी नाफिज हो गई हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि नेचुरल कैलेमिटी क्या होती है, फ्लड्स क्या होते हैं, अर्थक्वेक क्या है, हमारे बच्चों को तो नहीं पता. तो ये चीज़ें जो है मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा है कि ये बच्चों के लिए कंपलसरी बनाएं, उनके सब्जेक्ट में रखें, स्कूलों में पढ़ाया जाए कि नेचुरल कैलेमिटी क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर किस चीज़ को बोलते हैं, फ्लड्स आते हैं बेटा आपने क्या करना है, अर्थक्वेक आता है आपने कौन से ऐसे जो है प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं जिसकी वजह से आप अपने घर को बचा सकें. तो एक तो इस चीज़ को कंपलसरी बनाना चाहिए, हमारे लोगों में लेक ऑफ नॉलेज है. दूसरा ये कि हमारे नौशहरा में जो है कम्युनिटी को इंगेज करना चाहिए, उनके अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए. हमारे गवर्नमेंट जो है कैपेसिटी बिल्डिंग जो हो जाती है, ऑफिसर्स की भी हो जाती है, ऑफिशियल्स की भी हो जाती है. पीडीएमए एनडीएमए की तरफ से फायर फाइटिंग की जितनी भी टीम्स आते हैं वो हमारी तो ट्रेनिंग कर देते हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी में ये तो उनको पता ही नहीं है कि फ्लड्स किसको बोलते हैं या फ्लड किस लेवल का आना है, इरिगेशन डिपार्टमेंट क्या आपको अलर्ट मैसेज कर रहा है, एनडीएमए क्या कह रहा है. तो मेरी अपनी जो ज़ाती राय है कि अगर हम कम्युनिटी को इंगेज करें तो जिस तरह मैं इवैक्यूएशंस कर रही थी, लोग जो है इनकारी थे, वो घरों से नहीं निकल रहे थे, तो ये सिचुएशन हमें ना देखनी पड़ती. कम्युनिटी इंगेज होती, टाइमली उनको जो है, जिस तरह हमारा कंटिंजेंसी प्लान आता है मार्च में, हम उसको अपडेट करते हैं कि मार्च में हमने कंटिंजेंसी प्लान जितने भी हैं हमारी तैयारी फुल है, हम हर किस्म की इमरजेंसी को मीट कर सकते हैं. इसी तरह मार्च से ही हमारी जो है कम्युनिटी जो है उसको इंगेज करना शुरू कर देना चाहिए. अगर मेरे जो है नौशहरा में 154 मेरे VCNCs हैं तो उनमें हमें प्रॉपरली जो है कम्युनिटी सेशंस करने चाहिए, अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए. PDMA की तरफ से जो है उनके ऑफिशियल्स आएँ, लोगों को बताएं, फ्लड्स पे उनको जो है इंगेज करें, अर्थक्वेक के बारे में बताएं. तो इसी वजह से जो है लोगों में अवेयरनेस आएगी तो जो है वो मुकाबला कर सकेंगे. तो इसमें आपने दो बहुत अहम नुक्ते उठाए. वन इज़ climate literacy, so that people actually know and understand what the issues are surrounding climate change. And the other is climate communications. How do you communicate with communities, the public, through mass media or social media to make people aware of the issues and to take action in times of crisis? So literacy and communications. So let me come to Ayesha on this.
Aisha, through your organization, you talked about the fact that you had these discussions with the ladies and you knew their needs and their requirements, you understood that, and then you responded accordingly. यानी आपकी organization ने ये नहीं किया कि बस एक checklist बना दी और अपनी तरफ से वो कर दिया. आपने actually on the ground, grassroots पे काम किया और समझा कि लोगों की क्या वहाँ ज़रूरियात हैं और कौन से barriers हैं वहाँ पे. So tell us a bit about that process of understanding and educating the communities and learning from them. I think that's a very, very good question. So most of the work that we do, in fact, you know, जो भी हम काम करते हैं उसमें हम ज़रूर ये देखते हैं क्योंकि हम grassroots पे काम करते हैं, as you mentioned, right? और grassroots पे आप बिना community को engage करके आप काम नहीं कर सकते हैं, you know. So and it's a very difficult process, I should say, that, you know, going आप एक disaster hit areas में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ आपके safety issues भी काफ़ी होते हैं, right? And then also having women talk about things जिनका वो default उनकी thinking नहीं जाएगी, क्योंकि जब हम ख़वातीन से बात कर रहे थे तो वो हमें उनका भी, because the default is they would ask for ration, they would ask for you know, something for their children, right? क्योंकि हमारे पास तो ख़वातीन अपनी needs को भी prioritize नहीं करती हैं, right? So we spent hours in these camps trying and understanding कि कौन से मसले हैं, right? Which is again a very difficult process. और मिस वज़ीर गवर्नमेंट की बात कर रही थी, I think एक लेसन गवर्नमेंट के लिए भी है कि the government needs to go and sit like Miss Wazir did, that she went and was with the communities. But unfortunately, by large, हमने government को देखा कि वो absent थी, right? You have to go sit and have these conversations and understand कि needs ख़वातीन की क्या है या और भी sections की क्या है. But because I work in gender and I feel like the climate crisis response is gender blind, so वहाँ पे हमारा gap ज़्यादा है. तो ये एक बड़ा lesson है कि to go and understand कि अच्छा, and interestingly we also saw बहुत ही interesting gender के ना dynamics दिखे. So we saw कि ख़वातीन की nutrition भी बहुत ज़्यादा compromise हो रही थी, क्योंकि अगर राशन कम है तो पहले prioritize किया जा रहा था कि मर्द खा ले, ठीक है. We saw कि we also heard a lot of gender based violence cases, because again unfortunately हमारे माशरे में जब भी crisis आता है, जब भी pressure मर्दों पे आता है तो वो violence के form में निकलता है, whether it's, you know, whether this is sexual gender based violence or other forms of gender based violence. Apart from this, what we also saw is in pockets we saw women leadership from within these affected communities. You know, there were women, क्योंकि हर आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी गांव में चले जाएं, वहाँ पे आपको कुछ एक्टिव ख़वातीन दिखेंगी who are known कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करती हैं. तो इन्हीं ख़वातीन ने हमें हेल्प भी किया in organizing those menstrual health drives. So, you know, there are so many lessons that we can learn, and I don't know if you'll come to this question later on, but I quickly want to add that हमारे पास ना data driven काम बहुत कम होता है, right? So the government, I don't know, I highly doubt if there's been a study on climate crisis response अभी जो हमारे floods हुए हैं, right? There is a huge need for the government or for some authoritative organization to conduct a study कि कैसा रिस्पॉन्स था और गैप्स कहाँ हैं, क्योंकि डॉक्टर फजील्दा वाज मेंशनिंग कि ये और आएंगे, ये और हम देखेंगे, और फ्लड्स अनफॉर्चुनेटली हम देखेंगे, एंड विच आई ऑल्सो डाउट कि हो सकता है हमारी पॉलिटिकल विल भी नहीं है वो कि हम वो करें, बट देर इज़, यू नो, देर इज़ अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल ऑन कंडक्टिंग दिस स्टडी. बट इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि ट्रांसपेरेंसी के साथ हम डेटा कलेक्ट करें कि कैसे वो रिस्पॉन्स था और जेंडर को उसमें इंटीग्रेट करें कि व्हाट आर सम actions that can be taken to safeguard, you know, girls, women, children in future climate crisis. Absolutely. So let me throw that to Fazilda. With the Indus initiative, is there a portion of it which is about collecting data from the 2022 and maybe the 2010 crises and incorporating that into the interventions? Okay. The Indus initiative is currently at, you know, a feasibility stage. So the Indus initiative was, as you can imagine, just launched.
But there are other mechanisms with the government. For instance, the Ministry of Planning conducted the post-disaster needs assessment, in which they assess the damage to different sectors and the need for assess the monetary and other needs for reconstruction and rehabilitation. With that also, with the post-disaster needs assessment and the rehabilitation efforts that followed, the major problem was, as Ayesha has mentioned, gender, and probably it was because the scale of the crisis was so formidable, it was just huge, that gender almost always came as an afterthought, you know, to be included. There were surveys and assessments that were done afterwards, and but there hasn't been a concerted effort to find out or to analyze the gendered effects of the climate crisis, not just with respect to the floods, but we know that the floods came at the heels of a very prolonged drought. The floods, the droughts, the forest fires. There is a need to focus on the gendered effects of the climate crisis. इस पे डेटा बहुत कम है. फॉर इंस्टेंस अभी फ्लड्स के बाद हमें ये जो डेटा सामने आता है ऑन मैक्रो लेवल, हमें ये पता लगा कि तकरीबन 1.2 मिलियन हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनमें बच्चे 6 से 11 साल की उम्र तक दे विल नॉट बी अटेंडिंग स्कूल पोस्ट फ्लड्स फॉर वेरियस रीजंस. नाउ this is one statistic. Now think about what the effect it has on girls, right? Girls, it means forced marriages, early marriages, gender-based violence. Gender-based violence के cases और early marriages के cases, the UNFPA estimates कि तकरीबन 6.5 लाख बच्चियाँ जो हैं, औरतें जो हैं, they will be exposed to gender-based violence. इसी तरह these are again estimates, but about 1.5 million households as a result of the same survey are without water and sanitation. Now, at a household level, these many households are without water and sanitation. Like, think about what it means for women. Women are in household spaces managing. They are really your water and solid waste managers at home, right? They're very close to the natural environment, whether inside of the house or outside of it. They have a very close relationship to nature. तो इसका impact औरतों पे ज़्यादा आता है. Wash facilities, जैसे कि आयशा ने कहा, that direct impact, lack of access to wash has a very direct impact on women, much greater, disproportionate impact on women, much more than men. Absolutely. So, Hira, I want to draw you into this aspect. First of all, data collection. Are there technologies which help with this data collection in the aftermath of a crisis like this? And also, have you seen women respond to the need to actually document the responses of their communities? See, Mahreen, the thing is that we're not a data-driven nation per se. जो हमें डेटा की वैल्यू समझ नहीं आती है. But having said that, ये चीज़ें देखते हुए जिन पॉकेट्स में मैं काम कर रही हूँ, वहाँ पर जो लड़कियाँ काम कर रही हैं वो they do maintain, but it will be small communities, and फिर उस लेवल पे very rarely अगर somebody has done a PhD or somebody is studying at that level जहाँ पर वो स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी भी even undergraduate के लिए चले गए हैं. So that means that that population is very, very small. But yes, I think we need to be educated about climate awareness. उसी तरह से हमें data की importance क्यों है ये लेने की ज़रूरत है. तो अभी I always feel कि जो हमारे बच्चे हैं या young लोग किसी international forum पे जाते हैं, even जो लड़कियाँ जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ वो जाके अपनी pitches करती हैं कि international audience के सामने फंसती किस जगह पर है. The kind of statistics जो बाकी साउथ एशिया से लोग इकट्ठे कर रहे हैं, गवर्नमेंट साइन टेक्नोलॉजी सारी है, इट्स नॉट लाइक नहीं है. सबसे दुनिया के बेहतरीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ यहाँ से बन रहे हैं. जीनियस किड्स सिटिंग इन द यूनिवर्सिटीज़ एंड डूइंग कोडिंग फ्रीलांसिंग. सो वी डोंट हैव इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की कमी नहीं है.
कमी किस चीज़ की है, टू सपोर्ट देम, टू बिल्ड दैट इकोसिस्टम, टू ब्रिंग इट आउट, यू नो, एंड टू ब्रिंग दैट on the main frame, जहाँ पर उनको exposure दिया जाए, उनको opportunity दिया जाए, and I think that is really what sets us behind. But if we look at the brain and the heart, it's all there, right? How do we support them? So, right, I like that. The brain and the heart are there. It's just the data collection. So, Ms. Wazir, how did you document your responses and how should data be collected? कौन सी चीज़ें हैं जो हुकूमत असिस्ट कर सकती है या लोगों को खुद से अपने रिकॉर्ड्स एक कम्युनिटी के तौर पे बनाने चाहिए कि भाई हमने ये किया था जब सैलाब आया था? आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैम देखिए, डेटा कलेक्शन के बारे में मैं यही कहूँगी कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल जी डेटा कलेक्ट किया है. हमारी जब पोस्ट फ्लड्स की एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई तो हमने असेसमेंट की अपनी फ्लड डैमेजेस की. उसमें हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी हमारे 32 मौजे इफ़ेक्ट हुए थे उसमें हमने डेटा बिल्कुल कलेक्ट किया है. जहाँ पे हमारी प्रोटेक्शन वॉल नहीं थी और वहाँ से पानी जो है हमारी आबादी की तरफ आया है, बिल्कुल वो हमने रिकॉर्डेड की है. हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जो है उस पर PC1 बनाए हुए हैं, अप्रूवल के लिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गए हुए हैं. इसके अलावा जो है हमारी बहुत सारी ऐसी इंक्रोचमेंट्स थी हमारे डिस्ट्रिक्ट नौशहरा में कि लोगों ने अपनी ज़मीनों को जो है वो प्रोटेक्शन वॉल के लिए वो नहीं दे रहे थे. दे वर रिलक्टेंट, वो हमें बनाने नहीं दे रहे थे. जिसमें लिटिगेशन के केसेस थे वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हाई कोर्ट ने उस पर भी काम किया है और हमें ये इजाज़त दी है कि आप जो है अभी ये जितने भी प्रोटेक्शन वॉल जहाँ से भी मिसिंग है, लोग इंक्रोचमेंट्स कर रहे हैं, इजाज़त नहीं दे रहे या अपनी सहूलत के लिए उन्होंने जो है प्रोटेक्शन वॉल को ब्रीच कर दिया है, तो उन तब पे जितने भी हैं हमने प्रॉपर जो है उसकी सर्वे भी कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह काम भी शुरू हो गया है. एक हमारे गवर्नमेंट का एक और इनिशिएटिव है कि ये जो प्रोटेक्शन वॉल है इससे ओवरफ्लो होती है, तो इसको अब हम रेस कर रहे हैं. इसको हम रेस करेंगे तो एटलीस्ट अभी जो हम तबाही से बचे हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ना करे फिर भी हमारे सैलाब आएंगे तो उस पर जो है हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन उससे सेफ रहेगी. तो ऐसा नहीं है कि हम डेटा कलेक्शन नहीं करते, बिल्कुल हम डेटा कलेक्ट करते हैं. हमारे हेल्थ में जो है हमारे BHUs जो हैं डिस्ट्रॉय हुए हैं, हमारे एजुकेशन के बाउंड्री वॉल जो है हमारे बच्चों लड़कियां जो हैं उनके स्कूल के बाउंड्री वॉल डैमेज हुए हैं, बिल्कुल हम डेटा कलेक्ट करते हैं. लेकिन ये पूरी असेसमेंट जो रिपोर्ट होती है वो हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को भिजवानी होती है और फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब उसकी अप्रूवल देते हैं. लेकिन अगेन वो फाइनेंशियल जो है हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते कि हम पूरा जो है इस पे आइडियली हम उस पर सब पे काम कर लें और 100% जो है हमारी अचीवमेंट हो ताकि हम नेक्स्ट फ्लड्स को फेस ना कर सकें. लेकिन वो जो है उसकी रिलीजेस भी जो है फेज़ वाइज आती हैं और थोड़ा थोड़ा हो कि जो फंड हमें डिस्ट्रिक्ट को मिलता है हम जितने भी वो हमारे मसले होते हैं उन पर हम काम करते हैं. लेकिन वही है कि फ़ंड्स की अवेलेबिलिटी होती नहीं है तो नेक्स्ट हमारे फ्लड्स आ जाते हैं और हम अपने पिछले जो है हमारे फ्लड्स के एम्बैंकमेंट से प्रोटेक्शन वॉल जो टूटी पड़ी होती हैं उस पर भी हमने काम नहीं किया होता. तो यही बात है कि हमारे पास फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि हमने जो असेसमेंट हमने अपनी रिपोर्ट जो जमा की है उस पर फौरी कार्रवाई हो और फौरी हमारी डिस्ट्रिक्ट में जो है डेवलपमेंटल काम शुरू हो सके. इसमें जो है पब्लिक प्रेशर का भी एक रोल होगा कि अगर पब्लिक प्रेशर डाले अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स पे कि भाई हमें ये चाहिए, ये काम करो, ये भी एक पहलू है. मैम पॉलिटिकल फिगर्स जितने भी हैं वो तो खुश होते हैं इस तरह की डेवलपमेंटल काम करने में. जाहिर है उन्होंने वोट जो है इन्हीं लोगों से वो लेते हैं, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव उन्हीं लोगों के हैं. अगर वो प्रोटेक्शन वॉल बनाते हैं तो वो उन्हीं लोगों के लिए बनाते हैं. तो पॉलिटिकल प्रेशर की इसकी कोई बात नहीं है. बात यह है कि हमारे पास जो है फाइनेंशियल हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हमने अपना जो प्लान जमा किया होता है फाइनेंस एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सेक्शन में कि वो फौरी हमें फ़ंड आए हो. हमारे महकमे इरीगेशन का महकमा है, हमारी जो है PDA में अभी हमारी 5 करोड़ की लाइबिलिटी अभी तक पड़ी है. जितने भी सैनिटेशन सर्विसेज हमने अपने नौशहरा में किए थे बहुत सारे केसेस अभी हैं कि लाइबिलिटी पड़ी है. लोगों के 475 घर जो हैं डैमेज हुए हैं, अभी तक उनको जो है कंपनसेशन नहीं मिली. यही वजह है कि फाइनेंशियली जब हमारी बात हो जाती है तो फाइनेंशियली हम इतने वीक हैं कि हम फौरी जो है इमीडिएटली उनको फंड्स नहीं दे सकते ताकि वो दोबारा अपने घर जो है रिकन्स्ट्रक्ट कर सकें. लेकिन इसमें मैं INGOs और NGOs का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. पोस्ट फ्लड्स में हमारी गवर्नमेंट ने पूरी जो है मेहनत की है कि लोगों को फैसिलिटेट करें, लेकिन हमारे पास जो है इतनी सहूलियतें नहीं थी कि हम 100% अपना दे सकें. उसमें हमारे पास जो है रेड क्रिसेंट के, WHO के और मुख्तलिफ़ किस्म के INGOs ने आके जो है हमारी हेल्प की है. तो उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुश्किल वक्त में जो है उनकी वजह से हमें काफ़ी सपोर्ट मिली है. अच्छा, सो अब हम फाइनल क्वेश्चन पे आ रहे हैं इस सेशन के और ज़रा रैप अप करेंगे. अपने पैनलिस्ट से मैं पूछूंगी, एक आपने बड़ी चीज़ नोटिस की होगी, यकीनन किसी ने भी इस
ऑडियंस में या आपके जानने वालों में कभी कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा सड़क पे नहीं विटनेस किया होगा जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ. It's not an issue that we fight about. It's not an issue that we are aware of. Nobody quarrels about climate change because it's not important to us yet. हालांकि ये हमारी future generations के लिए एक इतना अहम मौजू है कि हमारे जो बच्चे हैं उनके बच्चे उनके लिए सबसे बड़ा इशू यही होगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ये एक्सट्रीम इवेंट्स होंगे और जो स्लो ऑनसेट इवेंट्स होंगे उनसे उनकी ज़िंदगियां मुतासिर होंगी यकीनन. तो to wrap up, I'm going to ask each of the panelists, what advice would you give this audience in how to educate their children and how to make their children interested in issues of climate change? And what small role can people play on an everyday basis to help build climate change resilience within their communities or their workplace or their families? Ayesha. I was hoping I'd be last, so I'll have time to think, but never mind. Oh wow. So I think I would just suggest see where you have power to influence a certain system, a certain policy, or a certain structure. So for example, let's say if you were and again, because a lot of my experience is in the climate crisis response, I'll address this question accordingly. So for example, अगर आप floods के time पे या आपकी कोई affiliation है किसी organization से या आपकी किसी दोस्त की है या आप किसी को जानते हैं, so do please educate them about the gender vulnerability in climate crisis. कि ख़वातीन के जो मसले हैं या ख़वातीन पे जो impact है, that's very different than what men experience. And it's so important that we put that gender lens. If you are, let's say, part of an institution or government or otherwise, see if there is a system or policy that you can influence. Or if you have someone in your family who you think कि अच्छा ये किसी इदारे में है जहाँ पे हो सकता है एक छोटी सी system को अगर influence हो, तो I think besides, I'm sure my co-panelists will talk about the individual actions you can take, but I do want to say, see जो आपका इंडिविजुअल जो है पावर है वो आप कहाँ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं टू ट्रिगर अ ग्रेटर चेंज. एंड देन ऑन एक चीज़ और मैं कहूँगी कि अगेन इन द क्लाइमेट क्राइसिस रिस्पॉन्स वन थिंग जिस कॉज पे हम काम कर रहे थे उसको बहुत हार्म किया वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, where people were forwarding WhatsApp messages in misinformed narratives about menstrual health. And it was funny for me to see that a lot of men knew what are women's menstrual needs. So please, when you forward this information, क्योंकि काफ़ी ऐसे WhatsApp messages या videos चल रही थी कि ख़वातीन को तो पैड्स की ज़रूरत नहीं है, गांव की औरतें तो पैड्स इस्तेमाल नहीं करती, आप उन पे पैड्स क्यों थोप रहे हैं, जबकि ख़वातीन खुद हमें कह रही थी कि हमें पैड्स दें क्योंकि उनके पास वॉशिंग फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी. तो प्लीज़ जो भी ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चलती है, प्लीज़ आप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एन ऑथेंटिक सोर्स. थैंक यू सो मच जी. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तो बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट्स हैं हमारे मुल्क में. अच्छा, Fazilda, talking about education and including the mainstream, including younger generations, does the Indus Initiative, Living Indus Initiative, have a portion where they're bringing in younger people? So climate literacy and a focus on the youth is a big part of the Living Indus plan. Pakistan has two forces, I'd say, that it needs to reckon with. One is its climate's vulnerability, and the other, which it can use to its advantage, is the youth bulge. And the Living Indus plan and the communication around it aims to focus on the youth and to leverage, and mobilize the youth, the young people of Pakistan, to work on climate mitigation, climate adaptation. इसके अंदर, and going back to what, going back to that question that you asked, what is it that you can do as a community, I'd say that the relationship
between women and nature is very important, but even more important is, you know, the relationship between women. Women who are women like myself, others out here in the audience who are working in the climate space, who are aware, and women who aren't. So indigenous women who live closer to you know, vulnerable areas that are vulnerable to climate change, women who live in riverine communities, women who work with you, women who do not have the privilege to know what you know, the various dimensions of the climate crisis, आप उन औरतों को educate करें. एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि apart from there's a very heartening initiative in South Punjab. They've already included, they've been managed to include and incorporate climate literacy in the early years curriculum, which is a big win, right? And other provinces under Living Indus, we're looking to do the same with other provinces. Aga Khan University ने एक बहुत प्यारा किताबचा छापा है जो कि अभी virtually available है. You can access it online, but it's for early years education, introducing children in the primary school to climate literacy. I'll end with something that's very powerful. अभी हमने data की बात की कि data नहीं है, data available नहीं है. You know, there's a lot of power in citizen science and in crowdsourcing. And this probably I'll direct to Hira also. I was meaning to ask her कि crowdsourcing. So under Living Indus, what we want to do is enable ordinary citizens of the Indus to be able to upload information about the Indus. इस एरिया में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है, यहाँ की water quality बिल्कुल नहीं अच्छी. You know, this is a mobile app that enables me to assess water quality using a smartphone. You know, things like that enable. हम क्यों इतने बड़े surveys का wait करें जबकि आजकल के दौर में technology does enable us to use citizen science to gather that information. That's a fantastic point. Yeah, citizen science, just like citizen reporting, कि आप कोई गलत काम नहीं कर सकते without your video being taken and sent off to some news channel or going viral on WhatsApp or Facebook. ऐसे, why not citizen science, where citizens collect data, scientific data about the level of pollution in their area or any ecological damage that's being done to wildlife. That's wonderful. Hira, technologies helping people learn more about climate change? Absolutely. Your best friend is Google on most cases. There's a lot of knowledge, information available online. But जो चीज़ मैं एक ऐड करना चाहूँगी, it's not just आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, जो चीज़ सीख रहे हैं. It's also about आप अपनी बेहसी किस तरह से ख़त्म कर रहे हैं. Why is there so much challenge is because हम एक consumption economy में रहते हैं, right? I'm a business person, so the basic thing is आप लोग जब यहाँ से उठकर जाएंगे तो यहाँ पर अगले आने वाले देखेंगे कि बहुत सारी प्लास्टिक की बोतलें और बहुत सारी चीज़ें और रैपर्स पड़े हुए हैं. So जिस वक्त हम उठ के जा रहे हैं उस वक्त why aren't we picking this up and taking it to the trash cans and putting it in there? We have a fantastic team. यहाँ पर इरवर्दे वाले बैठे हैं. I'm naming them because they are one of the startups that I work with as well. They have volunteers who want to educate you about trash segregation and separation. How many of us are going to take time today to talk to them, listen to them, understand how these things are happening? और जब ये चीज़ें हम खुद समझेंगे as adults, that's when we can tell our kids, because अगर आप भिंडी नहीं खाएंगे तो आपके बच्चे भी भिंडी नहीं खाएंगे, as simple as that. So yeah, how are we leading by example, and what are we really doing? And when your question about the citizen science, I think वो ecosystem की जो हम बात कर रहे थे, आप जब ऐप बना के देंगे जो इतना आसान है कि लोग समझें उसको, उसकी लैंग्वेज किस लैंग्वेज में है. Last Ministry of Climate Change previously put up this Clean Green Pakistan Index, और उन्होंने पोर्टल बनाया जहाँ पे लोग जाके सिटीज़ के अंदर अपना रिकॉर्ड कर सकते थे हाउ क्लीन द सिटीज़ आर. वेबसाइट इंग्लिश में थी. हाउ आर माई मैसेज गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट? हम लोग इंग्लिश नहीं बोलते. आई इनफैक्ट नीड, अब जो एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है कि देर आर पीपल हु आर पुटिंग अप क्लाइमेट लिटरेसी एजुकेशन पोर्टल्स ऑनलाइन, जो सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, वो उसको लोकल लैंग्वेजेस में, उर्दू में भी ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन इस मैसिव
एफर्ट के लिए अगेन गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होती है. सो एग्जाम्पल ऑफ KP इज their government is pushing this and they are already going to be implementing a plan of this sort, but we need the other provinces also to take a little bit of action. But then at the same time हमारी responsibility क्या है? Because everything is consumer driven. जो हम advocate करेंगे वो आगे जाके होता है. Absolutely, a wonderful line to end on. हमारी responsibility क्या है? Every one of us in this audience is a consumer, and that means we have power. And we should exercise that consumer power to promote causes, companies, and organizations that are not just gender blind, that look to women's needs, that address those needs, and that address environmental needs. So let me just wrap up by saying that if Assistant Deputy Commissioner Wazir can do it in a conservative tribal area, if Ayesha can overcome taboos in Sindh, and if Fazilda can lead policy discussions and decisions at the provincial level, and Hira can empower women at the forefront of clean technologies, then you all, individually and as leaders of your family, can be advocates for change in building resilience for climate change in Pakistan. And with that, I'd like you to join me in thanking the panelists, Hira Wajahat Fazilda Nabeel, Assistant Commissioner Quratulain Wazir, and Ayesha Amin. And from me, Mahreen Khan, that's all for the opening session. Thank you all very much for your attention and for being part of this lovely scenic setting. I wish you a very, very successful WOW Festival, and thank you all. See you. Allah Hafiz. Thank you. Thank you, ma'am.